أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تعزن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا
في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله هما ولا مظلوم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. दो हजार हैं, 4 से शुरू करते हैं। मिले बुलंद ना क्यों पेश हक मकाम मुझे मिले बुलंद ना क्यों पेश हक मकाम मुझे कि सुबह शाम है मदहे अली से काम मुझे कि सुबह शाम है मदहे अली से काम मुझे मिले बुलंद ना क्यों मेरा नसीब मुकद्दर मेरा मेरी तकदीर मेरा नसीब मुकद्दर मेरा मेरी तकदीर एक दो नहीं 12
इन आँखों ने क्या क्या देखा, मुजरिम खल्क में इन आँखों ने क्या क्या देखा, पर कहीं से पैगंबर सना आका देखा, पर कहीं से पैगंबर सना का देखा, मुजरिम खल्क में मैंने देखा अली असगर का गला खून में तर, मैंने देखा अली असगर का गला खून में तर, मैंने ज़ख्मी अली अकबर का कलेजा देखा, मुजरिम खल्क में इन आँखों ने क्या क्या देखा, मुजरिम खल्क में। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मजलिसों से कुछ मलक शीशों में भर कर ले गए, मजलिसों से कुछ मलक शीशों में भर कर ले गए आंसू खुला जाने के गौर ले गए, मजलिसों से कुछ हम इसी दर के गदा हैं, हम इसी दर के फकीर, जिस दर से फरिश्ते आके सर ले गए, मजलिसों से कुछ मलक शीशों में भर कर ले गए, देर से पहुँचे दरे शाहे नजर पर हम एक रोज़ा था गुलामी
मजलिसों से कुछ मतलब शीशों में भर ले गए, जो न ले जाना था वो भी सब सिता कर ले गए। शेख मलबू से कोहार ज़ैनब की चादर ले गए, मजलिसों से कुछ दोपहर में की तन पर जख्म खाए दोपहर में की तन पर जख्म खाए एक दिल पर दाग शायरी बातर ले गए, मजलिसों से कुछ बुग़्ज़ क्या था अश्किया को फातिमा के लाल से, कुछ नहीं तो झोलियों में भर के भर ले गए, मजलिसों से कुछ संग दिल थे क्या उन्हें दर्द यतीमी का, संग दिल थे क्या उन्हें दर्द यतीमी का, कान से गाली सकी आगे जो गौहर ले गए, मजलिसों से कुछ मतलब शीशों में भर कर ले गए, मजलिसों से कुछ मतलब। सूरह फातिहा। लो अहले अज़ाब तेरा लम्हो गम के दिन आए, लो अहले अज़ाब तेरा लम्हो गम के दिन आए, सरकीतों के मज़लूम के मातम के दिन आए, सरकीतों के मज़लूम के मातम के दिन आए, फिर आई क़यामत के मुहर्रम के दिन आए, फिर फस्ले अज़ाए शहे आलम के दिन आए, इस फस्ले शहे आलम के दिन आए, फिर गम से भड़कने लगी आतिश करो, फिर ताज़िए रखे गए शीरों के घरों में, फिर ताज़िए रखे गए शीरों के घरों में, लाखों से 72 के लड़ाई के ये दिन हैं, सादात पे आफत पे तबाही के ये दिन हैं, ज़ैनब से बरादर की जुदाई के ये दिन हैं, ज़हरा के भरे घर की सफाई के ये दिन हैं, ज़हरा के भरे घर की सफाई के ये दिन हैं, बेवारिसों से वारिसों का साथ छूटा है, ज़हरा का भरा घर रोज़ों में बटा है,
कुर्सी पे हुए जलवा फिर शहज़ाद फरमाने लगे शायर नबीओं से लोग ऐ भाइयों कहता है ये दिलबर है ऐ भाइयों कहता है ये दिलबर है परदेश में जुल्म सितमी जार करे अब हश्र तरफ हम इसी सहरा में रहेंगे अब हश्र तरफ हम इसी सहरा में रहेंगे लाशें भी गरीबों के यहाँ होएंगे पामा तीरों से किसी माता के घर होएगा बर्बाद और खून से सादा के होगी ये जमीन निकलेगी कोई कहती हुई हाय मेरा आशूर को सर बनाना सैलानियाँ होगी प्यासों की सी नहर पे कुर्बानियाँ होगी प्यासों की सी नहर पे कुर्बानियाँ होगी ये सुन के रवाना हुए आपस इस बस्ती के लोगों को बुला लाए मेरे हम राजी सब और निभाली गए और साथ ही माँ बाप के अतवाले हमेशा मजलूम के खिलाफ होते थे बच्चे सर पीटे थे हाथों से रोते थे बच्चे रोने लगे वो सुनते ही ये शास्त्रूला की अर्ज बजा लाएंगे आँखों से ये हम जानते थे होगी ज़मीन से अफसोस के घर फातिमा को होएगा बर्बाद ये अम्र हमारे लिए क्यों करना ज़बूर अफसोस के इस बस्ती में सादात का फूल अफसोस के इस बस्ती में सादात का फूल लो अहले अज़ाब के ज़ल्मो गम के किनारे
Muhammad wa ali Muhammad salawat. हुसैन जाता है मरने को है मेरी ज़ैना, करीब आ गया अब वक्त आखिरी ज़ैना, सलाम तुम पे ऐ बाबा की लाडली ज़ैना। ज़ैनब ने कहा कौन है परदेस में मेरा, क्यों जाते हो तुम छोड़ के भैया मुझे तन्हा। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया है, याद आओगे भैया। बाद आपके होगा मेरी गुर्बत का ये आलम, उस वक्त गरीबी भी करेगी मेरा मातम। सादात को जब राह में देगा कोई सदका, याद आओगे भैया है, याद आओगे भैया। याद आएगा भैया मुझे अरमान तुम्हारा, तुम देख नहीं पाए हो अकबर का जो सेहरा। दावत कोई शादी की मदीने में जो देगा, याद आओगे भैया है, याद आओगे भैया। और इस माह से मंसूब थी भैया मेरी खुशियाँ, थी सबसे बड़ी ईद मेरी तीसरी शाबान। शाबान के जब चाँद को देखेगी ये बहना, याद आओगे भैया है, याद आओगे भैया। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया है, याद आओगे भैया। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Salawat. Assalamu alaikum everyone, my name is Hadi Bizri and I'm with Jaffer Youth, which is the youth group for Idara-e-Jaaferiya. Now this is a formal invitation for your children to come work with us. We have done many things over the years. We've been to Calais to help the refugees. We've also done some youth programs for swimming, and we have done many more. And I also like to invite Moulana to come as the
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم من يومنا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم أحد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منهم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون صلوات. The ayat is from Surah Yasin, ayat number 60 to 63, in which Allah subhanahu wa ta'ala is announcing the agreement that he has created with mankind and Allah subhanahu wa ta'ala himself. Of course, the ayat starts as Alam Ahad Ilaykum Ya Bani Adama. We explored this discussion yesterday, but just to have a recap of how we're developing the conversation. The ayat says, have I not made an agreement with you, O children of Adam? In others, in any kind of conversation, when somebody says, have I not made an agreement with you, there's a two-way party there. He who is making the agreement and he to whom the agreement is associated to. There's a double-way conversation here. Allah subhanahu wa ta'ala has made that quite clear. And therefore, Allah has promised on numerous occasions that if you keep to your promise, I will keep to my promise. If you do dua to me, I will do istijabat of your dua on my part. In others, Allah subhanahu wa ta'ala has made numerous contracts with us as human beings. In others, there are numerous spiritual contracts which God has made with us. You do dua, as I said, and then Allah subhanahu wa ta'ala will do istijabat of it. He will answer to it. But of course, in this particular aspect, dua, we have to be very careful. I mean, some of our children have to understand that they should not abstain. And not only our children, our adults should not forget that they should not abstain from dua. Dua, in reality, for example, in the salat, dua is known as that which is that which completes the salat. Sometimes we think we've done the 4 rakat or the 3 rakats or the 2 rakats, that we've completed our duty. But the aspect of supplication, the aspect of dua, that must be installed in our children from their childhood, that they should not forget that they should do dua. And that's why sometimes when we become adults, we forget the meaning of dua in relation to ourselves. We think for example, if somebody is dying and we say, Allah subhanahu wa ta'ala, give him good health, and he dies, immediately people say, Allah ne mein dua nahi qabul ki. He hasn't accepted my prayers. How come I asked Allah to bring him back to life or keep him alive? How come he died? We forget that we are not instructing God to do something, first of all. We're asking God to do something. What God does in relation to what we ask is what he feels is the best for us at that time. We shouldn't feel that once I've asked, why hasn't it happened? And that's why we have to understand that when we say that Allah subhanahu wa ta'ala give this gentleman good health when he's on his deathbed and he dies, it's not that Allah has not accepted our dua. It's that Allah is saying to us that the death of this person is the haqq of this person at that time. That's what we don't realize. How do we not accept this? That maybe if he came back alive, he may have done many evil things. The fact that he's died at that time may be the best thing for him. And that's why, there's a lovely dua which children are taught in Iran. Alhamdulillah, when you have Islamic society, from the childhood, children are given the opportunity to raise in Islam. But if you don't have Islamic society or if you don't have Islamic household, then from the childhood, the child is being given an opportunity to learn haram. So it's very important that those who are raising the children of the next generation, that they develop in institutions of halal in their home. So those institutions of halal give the child the opportunity to eat and live and drink and breathe halal. Not create a haram institution and say, okay, when the child goes to the Sunday school, he will learn Islam.
Sunday school is only a couple of hours a week. But the enemy's schools are 5 days a week. And we don't have enough institutional learning for our community. If our houses are also homes of shaitan. So we have to be very careful. So there's a lovely dua which children are taught in Iran on TV. It said that they tell the children to say this in their dua. And inshallah, when our children and also our adults, when they think of this dua a little bit, they would do this in their duas as well. They say, Allah subhanahu wa ta'ala, I thank you for what you have given me. And I thank you for what you have not given me. For, had you had given it to me, I don't know how I would have used it. Look at the depth of that dua. For a child of 7, 8 years old, you're teaching them. What are somebody will say, you're trying to create a philosopher in a 7-year-old child to think, what you have not given me, what would I have done about it? No, there's a depth of understanding. Even a child understands that, God, if you did not give it to me, what would I have done with it? But the adult should know. And that's why when we teach our children to say Bismillah when they start anything, and this is very important, our children should never forget to say Bismillah. But the point is, when we become 25, 30, 35, 40, 45, 50, we forget Bismillah. And Bismillah is not, I start in the name of Allah. But we think that. But in the Quran, if you look at the tafsir of Bismillah, it has numerous meanings. It depends for which that Bismillah is coming in that surah. But what does Bismillah mean? Bismillah doesn't mean this, that I start in the name of Allah. The children should realize this and carry it with them all their lives. Bismillah does not mean I start in the name of Allah. Bismillah means I start my action such that God is with me in it. That is the meaning of it. So do we really, particularly for those who are accustomed to doing ribat, can we say Bismillah before we do ribat? Bismillah ka falani yasa, falani yasa. Do we really want God to be with us when we're doing ribat? Do we really want Allah to be with us when we're taking somebody else's pen without his permission? Do we really want Allah to be with us when we want to slap someone in the face for no reason? That is what Bismillah means. That is the depth of what Quran is telling us. That's why yesterday when I said to you that the Quran says itself, that in the second surah of the Quran, Alif Lam Mim Zalikal Kitab la Rayba Fihi Hudal lil Muttaqin. That it is a guide for the Muttaqin. And then we said that Mawla Imam Hussain al-Islam's Tarif is Misbah al-Huda. And he's the light of guidance. So those who want to follow the Quran must follow Imam Hussain alayhi salam's message. And if they don't want to follow Imam Hussein's message, alayhi salam's message, then they're abstaining themselves from the Quran. But you see, the Quran, we have forgotten its use. And inshallah, I'll develop this discussion a little bit, because the word which we forget about the Quran is not that we forget to use the Quran, but we forget to recognize that which is the hidayat for us, that which is the contract for us between Allah and human beings is the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala says, Alam ahad ilaykum. Do you not remember that agreement? How did he make that agreement with us? How did he make that agreement? It's not like what the Christians say, that God came on this earth in the form of Hazrat Isa to make that agreement with mankind. That's what they say in Christianity, don't they? Hazrat Isa is God in his manifestation, and he comes and makes agreements with people as to how they should behave with God. We don't believe in that. If we say that God comes in a bodily form, then God's finished for us. Children and younger generations should realize that God's meaning is the fact that he's absent, that we believe in him. He does not have to be present for us to believe in him. The fact that we don't, the Quran ayat says, Alif Lam Mim Zalikal Kitabu la Rayba Fihi Hudal lil Muttaqin alladhina yu'minuna bil Ghaib. That these are the people who have belief in the Ghaib, and the ultimate Ghaibat is Allah subhanahu wa ta'ala. And his manifestation in this world is Imam Zaman Abdullah Ta'ala Faraj. If we understand that, then we understand the very meaning that in the absence of a physical God, how do we connect to God's message?
This is what we need to realize for ourselves. How do we connect to God's message? God is not going to come and say, I am God. And nor would Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam say that I'm God, listen to me. He always said, I'm the messenger of Allah. So if he's the messenger of Allah, where is this treaty that Allah is talking to us with, he made with Hazrat Adam? This treaty was in the Lawh Mahfuz. This treaty came into the heart of the Holy Prophet. This treaty came into the tongue of the Holy Prophet, and then it was exposed to the mankind through Hazrat Jibreel in the form of the Holy Quran. This is the treaty. We got to understand any agreement, any job you do, you sign a contract. I will behave like this, I will work like this, I will do these as my duties. Allah subhanahu wa ta'ala, when he sent us through the womb of our mothers, he has given us, created a treaty with us. And that is that you will survive as long as you survive on my instructions. And my instructions are that which has been passed on to you through the divine message of Hazrat Jibreel, through the Holy Prophet, in the form of this book, which was in my presence in the Lawh Mahfuz, and now it's in your presence in this book form. But what do we do with this book form? This is the important thing I want to nurture in our conversation today. It's important for our children to understand the importance of this, and the younger generation to understand the importance of this book. This book is not just you put it on the shelf of the car, saying that inshallah when I'm driving, I will drive safely. It's not a book you put in your pocket that inshallah when I come home, I will come home safely. It is a book which tells you how to drive in a humanly manner, how to live in a humanly manner, how to walk around in a humanly manner. It's a treaty between God's creation and God's animals. It's a treaty between God's creation and God's vegetation. It's a treaty between God's believers and the enemies of Islam. It's a whole book of information which tells you how to generate that treaty which you have created with Allah, with his creation. When we understand that, we cannot leave it. There's no way that we can leave it. But what is important in this conversation is that we understand how important this book is. You know, if you don't have any importance about something, you will leave it to gather dust. If you don't have any importance about it, you will leave it to when somebody passes away that you may read a couple of ayats from it. If you don't see the importance of it, you will leave it until my daughter gets married so she can walk under the Quran, and that's it. That's the end of the use of the Quran until my next daughter gets married or until my next son gets married. But alhamdulillah, thank God from Allah subhanahu wa ta'ala, all my children have got married and they're happy, inshallah, in their lives. And please pray for my children as I would pray for your children, inshallah. Salawat. And of course, in this process of dua, one dua you should all keep in your minds is this, that we should pray for the deceased of those, of the deceased who have been the foundation of the creation of such institutions in England. For our first generation, what they did in creating institutions like Idara-e-Jaaferiya, the Imamia Mission, Crawley, any other institution, the first generation sacrificed their lives. So this type of barakat could be in our possession to sit and remember the message of Imam Hussein now. So let's read, inshallah, salawat for the ruh, inshallah. The importance of the Quran. The importance of the Quran is this, that sometimes we think, hey, I can't read it, so what's the use of me looking at it? I just read the English translation. At least, you know, I don't have to make myself tired reading the English translation. But people forget that what Quran is, no translation can yield that flavor for you. What the Quran, the Arabic text is, no translation of Urdu, Farsi, Chinese, Japanese can give you that meaning that the Arabic Quran gives. What does that mean? That meaning is this fact that the Quran says, I am Nur. The Quran says, Mayat Nur, I'm a light. What does it mean by being a light? There's a lovely saying from the Holy Prophet. He says, when the Quran is recited in the world, then angels look at that recitation as if there's a light shining up to them. That is the Nur that we're talking about. It doesn't nurture in the Islamic context in an English translation.
It doesn't nurture in a Farsi translation or Urdu. It nurtures in why it's in Arabic. First reason is because Allah subhanahu wa ta'ala could have sent his prophet talking to people in Chinese, in Japanese, but he sent his Nabi to talk to the people of that time in Arabic so they could understand it. And there was a reason why that Allah subhanahu wa ta'ala did that. That is because then there would be no excuse for anybody to say, I didn't understand what this man was saying. And the important thing is that Allah subhanahu wa ta'ala's message is a miracle. Its miracle would be in the form of the nur that penetrates up to the malaika and it penetrates into the hearts of the reciter. That is the nur. But how does it work in practice? It's like this. I'll tell you two stories relating to it. And I must say, today I was educated by someone where my ignorance was at its peak. But alhamdulillah, we all are on a learning curve. That learning curve could be from an uncle, an auntie, a grandfather, a grandmother, or even one's own son. Nur of Allah subhanahu wa ta'ala is like this. When you recite the Quran, you say, I can't recite it in Arabic. Why should I look at it? You say, no, look at it, even if you can't recite it. Why? Because if you put this into the minds of our children who do not even know how to read Alif, Be, Te, that you say, Beta, sit down here, look at the Quran. What does that mean? The moment you tell your child to say, look at the Quran, you're telling the child, look at the words in this book which were revealed to by Prophet from Allah subhanahu wa ta'ala. You are looking at those very words which the Holy Prophet was reciting. You're not reading any Tom, Dick, or Harry's words. You are looking at the words which Allah gave to my Nabi. Son, look at what was given to my Nabi. When you encapsulate that in the mind of the child, and he's not a 12-year-old child in 2021. He's a 12-year-old child, son of a lover of the Ahlul Bayt, who is giving his son the book which was revealed to his son by Allah subhanahu wa ta'ala to his prophet of the time. That's what you're bringing into the minds of the child. Not another book by Tom, Dick, or Harry. It's Allah's book. It's a mess. But what's happening here? The child says, Baba, I can't read it. He says, Beta, it doesn't matter. Look at what was revealed. Then after a little while, you teach the child Alif, Be, Te. Then he says, Baba, I can only say this is Alif, this is Be, this is Te. He says, son, never mind. Let it be Alif, Be, Te. But remember, it is that Alif, Be, Te of the words which Allah subhanahu wa ta'ala revealed to your Nabi. It's not another Alif, Be, Te you're teaching from the Qaeda. It's that Alif, Be, Te in the book which you are asking your son to look at. Or your daughter, alhamdulillah. Then the child puts this Alif, Be, Te and Alif, Lam, He together and says, Baba, this says Allah. Then you say, yes, beta, this is the word which Allah subhanahu wa ta'ala revealed to your Nabi, where he says, Qul huwallahu ahad. It is that Allah in Qul huwallahu ahad, which you have learned to recite. Then after that, you start teaching your son to read Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alameen. In fact, you're the one who's saying Alhamdulillah Rabbil Alameen, because you have now put your child on the line of what Allah expects of you. This is the nur. Because once you brought that child to your level of understanding what the Quran is, you have installed that nur in the heart of the child. That now the Quran, the words of the Quran are shining in the heart of the child. No longer just words on the book. Why does the Quran shine like a light? Here's an example I will tell you. This is what I've learned today in my 61 years of life. Again, I've told you what my age is. I look younger than that, I know that. You don't have to compliment me on that. There was a shepherd. There was a shepherd in Iran. His name was Kazim Karbalai. He was known as Saluki. He's buried in a grave opposite Hazrat Masuma's Haram. It was known at that time, during the time of Arab Bujadi, it was known at that time that this man could not read and write.
But if you gave him a text of Arabic, if it had Arabic words in it, which were Quran and which were non-Quran, he would be able to point out what was Quran and what was not Quran without any problem. What was the history of this gentleman? Because you see, if you want to bring your children to this level of what this person was, he couldn't read, yet he could say what is Quran. He couldn't spell, but he could say this is Alhamdulillah. Why? The story about this gentleman was this. Now, he used to work for a landlord in the days of history, Arbab. There were people who were landowners. And he used to work for him. Then in a night, he had a dream that, in fact, this landlord of his never paid zakat for his money. So this man, he went to his landlord. He said, my friend, I know I work for you. Well, this is my Cockney conversation he would have had. Otherwise, it would have been some more Farsi. Or in the Cockney, you say, what are you doing not paying your tax, man? But he didn't say that. He said, look, I hear that you don't pay your zakat. So he says, yes, what's it to do with you? He says, look, as far as I'm concerned, you've got haram money here. You're giving me your haram money for my livelihood. I don't want your haram money for my livelihood. So the Arbab, to patronize him, in his Cockney, he said, what are you going to do with it if I don't pay you? And he says, well, I'll go somewhere else. So how are you going to live without my money? He says, I don't care. I don't want haram coming into my house. I'll do something. So he went, he started collecting straw and grass and things, and he would carry it and sell it and stuff. One day he got so tired whilst carrying this bundle of hay on his shoulder. He rested at a Imam Zadeh, at a haram of an Imam who's Olad. He slept, he fell asleep. And when he woke up, he saw 3 Sadat near the haram. And they said to him, would you like to come in with us to do ziyarat of the Imam Zadeh here? He was very happy that, he's being helped with this, taken by the Sadat to go and read the haram, go to do the ziyarat. So he went with them. And then right across, whoever's been to these haram, the harams of Imam Masumin and the Awliya, you've got Quranic ayat all over the place, on the walls and everything. So one of the Sayyids says to him, read what's written here. Iqra. He says, what are you talking about? I can't read. I don't know how to read. I don't know what's written up here. So the other Sayyid says, he taps him on his shoulder and he says, Suluki, read. You can read. I know you can read. And he fainted. When he woke up, he could read what was on the walls. But that story doesn't finish there. What's really beautiful is that once in his period of time, most of the Buzurg ulama started testing him when it became famous that this man could read Quranic ayats without learning them. So Ayatul Burjadi invited him once, and he wanted to test him. So he gave him a big Arabic textbook, which, we in the Hausa, we have textbooks where you have a lot of text, and then in between you have Quranic ayats explaining the importance of that text. So Ayatul Burjadi gave him that text, and he looked at it, and he says, Allah, this isn't Quran, this is Quran, this is Quran, this isn't Quran. He went through the whole page, highlighting and explaining what is the Quranic ayat there and what's not the Quranic ayat there. And Ayatul Burjadi, if he was Cockney like me, he would say, what are you talking about? You're having me on. But he didn't say that. He said, are you sure? Of course, the Maraji are a lot more cultured than I am. So he said, are you sure? You're not, I'm sure he would have said this as well. He must have said this. You're having me on. But he says, no. Are you sure? He says, yes, sir. This is okay. Explain to us, how are you able to tell the difference between the Arabic text and the Quranic text? And you know what he says? Agha, that which is Quranic is shining in my eyes like the light of the book. That is the nur. That is the nur that we have to install in the eyes of our children. That is the alertness that we have to bring to a notification of learning for our children. Not to make them feel that, it should be, yes, mujhe khuda ke kalam se muttasil. That's what we have to teach. And that's what we have to bring in the understanding. Salawat. If we bring that into the learning circle of our children, then they would also understand
that the Quran is such an important book that God has not distanced himself from us in any way from it. In fact, he has created that understanding of that covenant that he has created through the Quran. You know, the Quran, it has 114 surahs. But how many bismillahs does it have right at the beginning? Any of us? I'm not testing. I'm not going to say those who don't know are ignorant or anything, but just any offers. How many bismillahs does the Quran? 113. Why? One is between Surah Toba. In Surah Toba, children, everyone listen. In Surah Toba, we don't have a bismillah. Yes, you're right. We have a bismillah in between it, but not at the beginning. So 114 surahs. But there's one surah in the Quran which Allah subhanahu wa ta'ala, yes, you want to say something, Ali? Huh? There's another bismillah. I said to you, yes, in Surah Toba, there's a second bismillah in the middle somewhere, which brings it to 114. If I'm wrong, then you can correct me, and I'll correct it tomorrow. But from what I can remember, it's like that. So of the 114 surahs, there's 113 surahs that Allah subhanahu wa ta'ala is freely talking to mankind. But there's one surah in the Quran which Allah subhanahu wa ta'ala has given the opportunity to mankind to talk to him. And that's Surah Hamd. And we teach our children just Surah Hamd as a salat surah. We should teach our children to know that Surah Hamd is the salat surah which Allah is giving you the opportunity to talk to him. He says, Alhamdulillah wa bismillah rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alameen rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Man is talking to God. This is what we have to install in our hearts and our minds. That when God says, Alam ahad ilaykum ya bani Adam, that I have made a treaty with you, Allah subhanahu wa ta'ala says, he has not made a treaty that is just something in the air. It's the treaty he has made to us with the Quran. We should make sure that Quran is part and parcel of our existence, and we should make sure that our children make that Quran a part and parcel of our existence. But the sad story is, to conclude as my time is finishing, the sad story is that we do not install that feeling in the hearts of our children because we ourselves do not make use of the Quran in front of our children. That's what is very important. That more and more we should endeavor to open the Quran, even if we're just looking at it in front of our children, look at it in front of our children. So they get used to this habit that looking at the Quran is the most important thing other than, just a last statement. There's a young lad who was dying in hospital. A young man who was about 22, 23 years old. He was dying in hospital and he says to his father, Dad, bring me all the qualifications that I have gathered in my life. So the dad goes, brings him his GCSEs and his A-levels, mashallah. Anybody who got their results today for A-levels, congratulations if you've got your 20, 30 A's. His A-level certificates, his degree certificates, his master's certificates, his PhD certificate. He brought it to his bedside. He says, Dad, thank you very much. I know I've got all these qualifications. But you haven't got the Quran in here. I don't have the certificate of the Quran. Why? Why is it that at the age of 22, I'm about to die and you don't even bring the Quran in my certificates? That is the sad thing. That's where we have to pin our understanding of what Alam ahad ilaykum ya bani Adam means. For it is the protection of this Quran that Imam Hussein gave his life. It is for the protection of this Quran that Imam Hussein's children gave their life. We should not just be sitting here just to wear black to commemorate him, but to be the standard bearers of those who are going to protect the Quran for our Imam of our time and show to the Imam of our time that we mourn for his grandfather so that the message can remain until the appearance of him in his rightful time. I pray that inshallah Allah subhanahu wa ta'ala keeps us on the right path, protects us from evil, makes us who practice mu'mineen, that inshallah if we are alive, we have to prepare ourselves for the Imam Zaman, and if we are not, then we train our next generation to join him.
I pray that inshallah Allah subhanahu wa ta'ala protects one Maraji, particularly Wilayat al-Faqih, Ayatul Uluzma, Sayyid al-Khamenei, that inshallah we can be united under one command. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma kulli waliyika al-Hujjat ibn al-Hasan, salawatuka alayhi wa ala aba'ih, fi hadhihi as-sa'ati wa fi kulli sa'a, waliyan wa hafidha wa qa'ilan wa nasir, wa dalina wa ma'ina, hatta tuskinahu awlaka naw'a, وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. मोमिनीन इदारा-ए-जाफरिया में टॉयलेट्स जो हैं वो रिफर्बिश किए जा रहे हैं। इसके अलावा किचन में जो स्टेयर्स हैं उसमें टाइल्स भी लगाए जा रहे हैं। इन तमाम अखराजात को पूरा करने के लिए आपकी माली ताउन की अशद ज़रूरत है। अपने नाम से या अपने मुरब्बीन के नाम से ताउन करना चाहें तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मुहर्रम फंड में जो मोमिनीन फंड देने के ख्वाहिशमंद हैं वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। 12 मुहर्रम तक जो तबरुकात तकसीम किया जाता है यहाँ पे, इसमें भी अगर आप हमारे साथ माली ताउन करना चाहें अपने नाम से, अपने मुरब्बीन के नाम से, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा शफाका शखनी में जो मोमिनीन माली ताउन करना चाहें आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेंबरशिप के हवाले से जो वो मोमिनीन जो अभी तक मेंबर नहीं बने हैं वो मेंबर बने, हम आपके तहे दिल से ममनून मशकूर होंगे। और वो मोमिनीन जिनकी मेंबरशिप की रिन्यू बाकी है वो अपनी मेंबरशिप को रिन्यू करवा लें। मैं मुल्तमस हूँ क़िबला मौलाना हसन अब्बास साहब से कि वो मेंबर और मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। Nasreen एक सूरह फातिहा पढ़ते हैं तमाम मरहूमीन मोमिन मोमिनात के लिए, शहदाए मिल्लत जाफरिया के लिए। जिस तरह आप जानते हैं जनाब कौसर साहब की ज़ौजा का इंतकाल हो गया कल, नसरीन रिजवी साहिबा का उनके लिए एक सूरह फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना व मौलाना व शफीइ ज़ुनूबिना हबीब इलाही अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद वअला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन ला सियमा बक़ियतिल्लाहिल अज़म व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकिरी फ़दाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले। ऐज़ान मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरह बकरा की 30वीं आयत है, इसमें इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह ताला ने मलाइका से कहा मैं ज़मीन पर अपना खलीफा, अपना नुमाइंदा बनाने वाला हूँ। लफ्ज़ अपना जो है मैं खुद बयान कर रहा हूँ, लेकिन कुरान में ज़ाहिर अपना का लफ्ज़ नहीं, मैं खलीफा बनाने वाला हूँ, मैं खलीफा बनाने वाला हूँ। तो मलाइका ने कहा ए खुदा, तू उनको खलीफा बनाएगा जो ज़मीन पर फसाद करेंगे, जो ज़मीन पर कुश्त खून करेंगे, जो ज़मीन पर कत्ल गारत गरी करेंगे तो उनको बनाएगा, जो फसाद मचाएंगे, कत्ल करेंगे, उनको अपना खलीफा बना रहा है, जबकि हम तेरी तस्बीह भी करते हैं, तेरी तकदीस भी करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा
कोई जवाब उनका नहीं दिया खुदा मुताल ने। इंशाअल्लाह आइंदा इस पे भी गुफ्तगू होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। लिहाजा मलाइका की बात को बिल्कुल डिनाई भी नहीं किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, न अल्लाह ने उनकी बात को एक्सेप्ट किया। अब वो क्यों नहीं किया, इंशाअल्लाह आइंदा गुफ्तगू होगी इस पर। कल जो गुफ्तगू इसी आयत के ज़ैल पे जारी थी वो ये थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा। हम जब वजूद ही नहीं रखते थे, जब हम एब्सेंस में थे, जब हम अदम में थे, जब हम मादूम थे, वजूद ही नहीं था हमारा, तो हम तो कहने के लायक ही नहीं थे। लेकिन खुदावंद मुताल से मांगने के लायक ही नहीं थे। खुदावंद मुताल ने उस वक्त हमको वजूद अता किया। खुदा ने बगैर मांगे हमें वजूद दिया, मांगने के लायक नहीं थे तो भी खुदा ने हमें वजूद अता किया। अदम से खुदा ने हमें वजूद अता किया। वजूद में फिर हमने क्या खुदा से कहा था खुदा हमें इंसान बना दे, खुदा ने बगैर मांगे हमें इंसान बना दिया। खुदा से फिर क्या हमने कहा था खुदा हमें सेहतमंद इंसान बना दे, खुदा ने हमें आज़ा और जवारे के साथ सही और सालिम इंसान बनाया। ना हमने खुदा से मांगा था, बगैर मांगे खुदा ने सेहत भी दी, सलामती भी दी, जो है आज़ा को भी दिए। और खुदा वंदे मुताल ने ना ये सिर्फ खुदा ने शऊर भी दिया, अक्ल भी दी। खुदा वंदे मुताल ने तमाम ये नेमतें जो खुदा दे रहा है हमसे सवाल नहीं कर रहे, हम उससे दुआ नहीं कर रहे, हमसे मनाजात नहीं कर रहे, बगैर उसके वो खुदा वंदे मुताल अता करता जा रहा है। खुदा वंदे मुताल ने अपनी मारिफत अता फरमाई, खुदा परस्ती हमें अता फरमाई। खुदा ने पैगंबर इस्लाम का कलमा महबूब बनाया, खुदा ने अली का मुहिब बनाया, खुदा ने हमें परचमे विलायत के नीचे जमा किया। खुदा वंदे मुताल ने तमाम जो नेमतें दी, इनमें से कोई नेमत हमने खुदा से नहीं मांगी थी, खुदा ने बगैर मांगे नेमत अता की है। अजीजान मोहतरम, अब तसव्वुर कीजिए, अब इस खुदा से अगर हम कुछ मांग लेंगे तो वो क्या अता करेगा? जो बगैर मांगे ऐसी नेमतें अता करने वाला है, तो जब उससे मांगा जाएगा तो वो नेमत, क्योंकि खुदा, मैंने अर्ज किया था कल, खुदा जरूरत पे नहीं अता करता है, खुदा लुत्फ पे अता करता है, खुदा इनायत पे अता करता है। इस बात को याद रखिएगा। हम जब भी किसी को कुछ देते हैं या किसी से कुछ लेते हैं तो देने वाले की भी कोई गर्ज होती है, लेने वाले की भी कोई गर्ज होती है, देने वाले की भी कुछ जरूरत होती है, लेने वाले की भी कुछ जरूरत होती है। अगर कोई कंपनी में काम करता है तो कंपनी उसमें जो पे कर रही होती है तो उस कंपनी की जरूरत है इसलिए वो पे करती है, और जो पे ले रहा होता है वो उसकी जरूरत है, ले रहा होता है। तो हमारी दुनिया में ये है कि हम कुछ भी करते हैं, चाहे देते हैं तो जरूरत पर, लेते हैं तो जरूरत पर। आप सोचे वो गनी अलल इतलाक है, वो अगनी है, वो समद है, वो खालिक है, वो जो कुछ भी अता करता है किसी ने उसे मजबूर नहीं किया, कोई उसे जरूरत नहीं थी, उसने बगैर जरूरत के हमें अता किया, बगैर मांगे अता किया। इसके माना ये है कि खुदा बंदे मुताल बगैर मांगे देने के माना ये, खुदा बंदे मुताल जरूरत पर नहीं देता है, खुदा बंदे मुताल इनायत पर देता है। लुत्फ सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वो उसकी इनायात हैं, वो उसका लुत्फ है जो खुदा बंदे मुताल अता फरमाता है। आवाज तेज है, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। खुदावंद मुताल अपनी इनायात में जब चीजों को देता है तब सवाल वहीं पे जहां से हमने गुफ्तगू छोड़ा था। अजीज़ान मोहतरम, ये बताइए कि खुदावंद मुताल से बगैर मांगे खुदा ने हमें ये नेमतें अता की। वो खुदा, उसने पानी उस वक्त बनाया जब कोई पीने वाला नहीं था। वो खुदा जिसने सूरज उस वक्त चमकाया जब किसी को जरूरत ना थी। वो खुदा, उसने उस वक्त हवा को तख्लीक किया जब कोई ऑक्सीजन लेने वाला नहीं था। क्या आप इस बात को मान सकते हैं कि पहले खुदा ने कोई मखलूक बनाई हो जो मोहताज हो ऑक्सीजन की और फिर खुदा ने ऑक्सीजन बनाई हो? पहले कोई प्यासा हो फिर खुदा ने पानी बनाया हो? पहले कोई भूखा हो फिर खुदा ने ग़िज़ा दी हो? नहीं, खुदा ने ग़िज़ा का एहतमाम पहले किया है, पानी का एहतमाम पहले किया है, हवा पहले बनाई है, सूरज पहले बनाया है, जमीन उस वक्त बना दी थी जब कोई चलने वाला ना था। चलने से पहले, यानी इससे पहले चलने वाला ना था। और आप लुत्फ इनायत खुदावंद मुताल की देखें, खुसूसन इंसान और तमाम मखलूकात के लिए देखें कि खुदावंद मुताल ने इस दुनिया में हमारे आने से पहले
हम सब के साथ खुदा ने ऐसे ही किया। खुदा बंदे मुताल ने हमारे इस दुनिया में आने से पहले कम से कम एक खिदमत गुजार, और वरना अल्लाह ने हर एक को 2 खिदमत गुजार अता किए कि इसका पैर नातवा है, इसकी आंखें नातवा हैं, इसका जिस्म नातवा है। वालिदैन की सूरत में अभी हमने मांगा नहीं था, खुदा ने आने से पहले ऐसी माँ अता कर दी जो हमारे नातवान जिस्म को परवान चढ़ा देती है। ऐसा बाप अता कर दिया जो अपने लुत्फ व इनायत से हमें परवरिश कर लेता। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो ये खुदा बंदे मुताल लुत्फ इनायत, ये कौन सी नेमात है? ये नेमात वो हैं जिनको हम नेमात मादी कहते हैं। तो खुदा बंदे मुताल अपनी मादी नेमात में भी पहले खुदा नेमत को दे रहा है इस्तेमाल होने से पहले। तो अब सवाल ये पैदा होता है, तो वो खुदा बंदे मुताल कैसे मुमकिन था कि पहले कोई वो अफराद आते, जो कल मैंने मिसाल भी दी थी, ये हमारा कानून है, पहले कुछ बच्चे जमा कर लिए जाएं फिर स्कूल खोला जाएगा, पहले कुछ अफराद जमा हो जाएं तो मौलाना साहब तबलीग करेंगे। लेकिन खुदा का निजाम बिल्कुल बरक्स है, वो जरूरतों पे नहीं चलता, वो इनायतों पे चलता है। उसने उस वक्त हादी को भेजा जब कोई हिदायत लेने वाला नहीं था, इसलिए कि उसकी सुन्नत ये है। उसने पानी उस वक्त बनाया था जब कोई पीने वाला नहीं था, उसने हवा उस वक्त बनाई थी जब सांस लेने वाला नहीं था, उसने जमीन उस वक्त बनाई थी जब कोई चलने वाला नहीं था। जब मादी नेमात उसने पहले बनाई है और इस्तिफादा करने वाले बाद में भेजे हैं, तो बताएं मानवी नेमात में कैसे करता? ये मुमकिन नहीं था। लिहाजा खुदा ने हादी का एहतमाम पहले किया है, हिदायत याफ्ता अफराद के सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक और मरतबा सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो ये मुमकिन नहीं था। लिहाजा खुदा बंदे मुताल ने जब कोई रोए जमीन पर हाथ जो है हिदायत लेने वाला नहीं था, खुदा ने हिदायत देने वाला भेजा। तो आज ये मुमकिन है कि इतने हिदायत लेने वाले मौजूद हो, कोई हादी मौजूद ना हो, कोई हादी बरहक मौजूद ना हो। ये खुदा के लुत्फ इनायत के खिलाफ बात है। ये खुदा बंदे मुताल के लुत्फ इनायत के अगेंस्ट बात जाती है कि वो खुदा जब एक हिदायत वाला नहीं था तब उसने हादी बनाया था। तो आज लाखों मिलियंस की तादाद में जो हिदायत देने वाले, तो आज हिदायत का इत्माम नहीं होगा? नहीं, आज भी खुदा ने तो हादी बनाया हुआ है, लेकिन उससे हम राजी नहीं हिदायत लेने को। देखिए एक मिसाल देके बात को आगे बढ़ाऊं। अगर एक मरीज डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर से कहे मेरा ये मर्ज है, फला है, उसको दिखाए, डॉक्टर कहे आपके जिस्म में आयरन की कमी है या विटामिन सी की कमी है, फला विटामिन की कमी है, डॉक्टर आपको दवा भी दे दे, नुस्खा लिखकर भी दे दे, और इंसान वो दवा ना खाए, तो इसमें डॉक्टर का कसूर है या ना खाने वाले का कसूर है? डॉक्टर ने वो प्रोवाइड किया जो आपके जिस्म को जरूरत थी, लेकिन वो मरीज ऐसा था, वो सेब रखे रख के सूख गया, वो दवा रखे रख एक्सपायर हो गई, वो आयरन की कमी थी उसके अंदर, ना उसने वो सेब खाए ना वो दवा खाई, नहीं यानी ना नेचुरल तौर पे उसने लिया ना मेडिसिन के तौर पे उसने आयरन लिया। तो इसमें ना डॉक्टर का कसूर है, ना निजाम मेडिसिन के जो निजाम है मेडिकल साइंस का कसूर है, बल्कि कसूर उस शख्स का है जिसको जरूरत थी, उसने उसका एहसास नहीं किया। खुदा ने तो ये के बाद भी 1,24,000 अंबिया को भेजता रहा, लेकिन ये इंसान कत्ल करता रहा, ये झुठलाता रहा, ये दिला गत्म करता रहा, ये तकजीब करता रहा, ये तोहमतें लगाता रहा। वो सिलसिला खत्म हुआ, खुदा ने इमामत का सिलसिला शुरू कर दिया, उसके बाद भी इंसान नहीं सुधरा। एक इमाम को कत्ल किया, दूसरे इमाम को कत्ल किया, तीसरे इमाम को कत्ल किया, यहां तक के 11वें इमाम तक शहादत का सिलसिला चला। तो खुदा बंदे मुताल ने कहा कि मैं तो हादी भेजने को तैयार हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने मेहदी को पैदा नहीं किया, मैंने कोई हादी नहीं बनाया, मैंने हादी भेज दिया है, तुम उस हादी को कबूल करने को तैयार नहीं हो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मामनीन आपसे गुजारिश है थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि लोग बहुत ज्यादा मिक्स बैठें। जब तक फासला हो सकता है आप लोग आगे आ जाएं, ताकि पीछे अब जगह नहीं। एक और मरतबा सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और मरतबा सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। खुदा बंदे मुताल ने
इसलिए ये तो खुदा की सुन्नत के खिलाफ हो जाएगा कि खुदा बंदे मुताल छोटी छोटी नेमात को तो पहले दे दे और उसके जो मोहताज हो उसे बाद में भेजे। तो नेमत हिदायत जो खुदा बंदे मुताल की सबसे बड़ी नेमत है, वो कैसे मुमकिन है कि खुदा कोई हादी ना बनाए और बगैर हादी के इस दुनिया को छोड़ दे। हम जिस दिन तैयार हो जाएंगे, जिस दिन हम आमादा हो जाएंगे, खुदा का नुस्खा तैयार रखा है, खुदा का तरफ से एहतमाम बाकी है जो तैयार है, उस एहतमाम को जिस दिन हम राजी हो जाएंगे, जिस दिन हम इस कहल हो जाएंगे कि हुज्जत खुदा से फायदा उठा सकें, यकीनन खुदा बंदे मुताल हमारे लिए उस हुज्जत को फराहम कर देगा। शर्त यह है कि हम उस हुज्जत के लिए तैयार हो जाएं। अजीजान मोहतरम, खुदा बंदे मुताल ने जो इंसान को खिलाफत बख्शी, कल अर्ज कर रहा था कि खुदा बंदे मुताल ने जो खिलाफत दी है जनाब आदम को, वो हिदायत की खिलाफत दी है, हादी बनाकर भेजा है कि वो मेरे बंदों की हिदायत करें, हिदायत वो करें। यकीन जाने जाने मोहतरम, ये अल्लाह सुब्हान ताला क्यों एहतमाम कर रहा है। खुदा बंदे मुताल कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, सख्खरा लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ जमीआ। खुदा इंसान के लिए कहता है, ए इंसान, मैंने तब सब कुछ तस्खीर किया है जमीन में, माफिल अर्ज़ व माफिस समावात, और जो कुछ समावात पे, यानी जमीन की नेमात की बात खुदा नहीं कर रहा है। खुदा आसमान की नेमात यानी जन्नत की नेमात, हेवन की नेमात जो है, खुदा कह रहे जो कुछ मैंने खल्क किया है वो सब जो है तेरे लिए मैंने खल्क किया है। ये मैंने कल बयान किया था। और वो खल्क किसके? इंसान के लिए हुआ। और फिर इस कायनात को चलाने वाला कौन है? जो खुदा बंदे मुताल की तरफ से वास्ता फैज है, वो कौन है? वो मलाइका है। फल मुदब्बिरात अमरा, खुदा कहता है इन तमाम चीजों को मैनेज करने वाले जो हैं वो मलाइका हैं। लिहाजा खुदा बंदे मुताल, क्योंकि मलाइका भी खुदा ने बनाए इसलिए कि इस दुनिया को मैनेज, इस कायनात को मैनेज किया जा सके, और इस कायनात को भी इंसान के लिए बनाया। तो वो मैं अर्ज किया था, आगे जवादी फरमाते, कहते हैं इसके माना ये है कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने जो कायनात सजाई है ये इंसान के लिए सजाई है, इंसान की खिदमत के लिए सजाई है, और ये मलाइका भी इंसान की खिदमत के लिए बनाए हैं। फिर वो बयान फरमाते हैं कि खिदमत किस इंसान के लिए बना है। आप तसव्वुर करें, ये बात मैंने किसी मजलिस में कही थी, आप तसव्वुर करें कोई दुनिया में आप मिलियंस चीजों के नाम जानते होंगे, हजारों चीजों का आपने तजर्बा किया होगा, लाखों चीजें आप इस्तेमाल कर चुके होंगे, एक उनमें से एक चीज मुझे बता दीजिएगा कि मौलाना ये जो चीज थी इसकी हमने खिदमत की है। कायनात का हर जर्रा जो है वो इंसानियत की खिदमत कर रहा है। हवा है तो इंसान की खिदमत कर रही है, सूरज है तो इंसान की खिदमत कर रहा है, चांद है तो इंसान की खिदमत कर रहा है, जमीन है तो इंसान की खिदमत कर रही है, दरख्त है तो इंसान की खिदमत कर रहा है, सब्जियां हैं तो इंसान की खिदमत कर रही हैं, फल है तो इंसान की खिदमत कर रही हैं। कायनात की हर चीज, जी शऊर और गैर जी शऊर चीज, जिंदा और गैर जिंदा चीजें जो हैं, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग जिसको कहा जाता है, खुदा बंदे मुताल ने इस अंदाज से बनाई है। हर चीज इंसान की खिदमत में है, हर चीज से इंसान फायदा उठा रहा है। हम पानी से फायदा उठा रहे हैं, पानी को हमसे कोई फायदा नहीं। हम हवा से फायदा उठा रहे हैं, हवा को हमसे कोई फायदा नहीं। हम सूरज से फायदा उठा रहे हैं, सूरज को हमसे कोई फायदा नहीं। हम चांद से फायदा उठा रहे हैं, चांद को हमसे कोई फायदा नहीं। हम जमीन से फायदा उठा रहे हैं, जमीन को हमसे कोई फायदा नहीं। कायनात में हर चीज, फलों से हम फायदा ले रहे हैं, फलों को हमसे कोई फायदा नहीं। लिहाजा खुदा ने हर चीज खिदमत गुजारी के लिए बनाई है। लेकिन आगे जब आदि कहते हैं तमाम कायनात जो खुदा ने सजाई, मलाइका को जो बनाया, कहा ये इंसान के लिए बनाया। कहा यहाँ भी सवाल ये पैदा होता है कि हम और आप जैसे इंसान के लिए बनाया या इंसान कामिल के लिए बनाया। असल हस्ती जो है वो इंसान कामिल है, रूह कायनात जो है वो हुज्जत खुदा है, वो मासूम हस्ती होती है। मिसाल दे, सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं मिसाल दे दूं ताकि बात को आसान हो जाए। देखिए, अगर मैनेजमेंट का कोई फर्द यहाँ आए और आने के बाद कहे ये सियाह पर्दे, ये सियाह फर्श, ये लाइटों का एहतमाम, ये अज़ाखाना, ये सब हमने अज़ादारों के लिए एहतमाम किया है, ये मौलाना को जो बुलाया गया, इन्विटेशन दिया कि आके आप तकरीर करें, ये हमने सब आप अज़ादारों के लिए किया, तो ये बात गलत करें। ये इंतजाम जो किया गया है और जो आइंदा 10 दिनों तक होता रहेगा, ये इंतजामिया जो कर रही है किसके लिए कर रही है? ताकि आपको मजलिस का जो है शिरकत कर सकें, आपके लिए कर रही है। लेकिन इसके रूह मतलब क्या है? वाकईन ये सिर्फ आपके लिए कर रही है, हकीकत में आपके लिए कर रही है, या आप इन तमाम चीजों से फायदा उठा रहे हैं?
असल में ये तमाम एहतमाम जो किया गया है वो आज़ाए हुसैन के लिए किया गया है। रूह मतलब जो है वो सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद, यानी सारा एहतमाम तस्करे हुसैन के लिए हुआ है। क्योंकि आप इस तस्करे से वाबस्ता हैं, लिहाजा ही कहना सही होगा कि ये हमने आपके लिए फर्ज लगाया है, ये मजलिस का एहतमाम आपके लिए हुआ है। लेकिन हकीकत में क्या है? हकीकत में खिदमत हुसैन में ये खराज अकीदत के लिए किया गया है। ये सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी खिदमत में ताज़ियत पेश करने को किया गया है। ये एहतमाम असल में सिद्दीक़ कुबरा के सामने इजहार मवद्दत के लिए किया गया है। असल में तो ये फर्ज उन हस्तियों के लिए बिछाया गया है, लिहाजा जाहिर यही लग रहा है कि ये आपके लिए बिछाया है, लेकिन हकीकत में क्या है? उन हस्तियों के लिए बिछाया है। कायनात जो सजाई खुदावंद मुताल ने वो भी इन्हीं हस्तियों के लिए सजाई है। वो और बात है कि उन हस्तियों की बिना पर इस कायनात का रिस्क हम भी पा रहे हैं। हम वो अफराद हैं जो अहले बैत के हिस्से में खा रहे हैं, और आप ये बार आप सुन चुके हैं, मैंने इसको बताया भी है, लेकिन आज इस उन्वान से सुनिए, इंसान कामिल के उन्वान से सुनिए। इंसान कामिल जो होता है वो उस सारे कायनात होता है। जब कुछ इंसान कामिल एक चादर के नीचे जमा हो गए तो खुदा बंदे मुताल इस अंदाज से और इस शान से गुफ्तगू करता है, फ़क़ाल अल्लाह अज़्ज़ा वजल, खुदा अपने आप अज़्ज़ा वजल के साथ कहे, फ़क़ाल अल्लाह अज़्ज़ा वजल या मलाइकती या सुक्काना समावाती इन्नी मा खलक़तु समाअ मबनिया वला अर्दम मदहिया वला क़मरम मुनीरा वला शम्सन मुदिया वला फ़ल्कन यदूर वला बहरन यजरी वला फ़ुल्कन यस्री इल्ला फ़ी मुहब्बति हाउलाए खम्सा अल्लज़ीना हुम तहतल क़िसास। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। खुदा बंदे मुताल कसम खा के अपनी इज्जत और जलालत की कह रहे हैं कि ये शामियाना जो बनाया आसमान का, ये जमीन जो बिछाई हमने, ये जो सूरज को चमकाया, ये जो हमने चांद को चमकाया, ये जो हमने दरियाओं को बहाया, ये जो हमने किश्तियों को चलाया, सिर्फ इन खमसा आले अबा की मोहब्बत में जो इस चादर के नीचे जमा है। क्यों? ये वो हस्तियां हैं जो हस्तियों के लिए कायनात बनाई गई है। ये वो इंसान कामिल हैं जिन पर ज़ेब देता है कि सूरज इनके लिए खल्क किया जाए। हम जैसों के तो अमाल ऐसे नहीं, खुदा एक बल्ब बना दे। ये सूरज चमक रहा है इसलिए कि इन हस्तियों के लिए, और ये आज तक जो सूरज चमक रहा है अजीजान मोहतरम, आज तो ये खमसे आले अबा नहीं मौजूद हैं, क्योंकि जब आयत नाजिल उस वक्त यही 5 तन थे और यही पंजतन थे, यही इंसान कामिल थे। लेकिन आज सूरज का चमकना बता रहा है, आज सूरज का दमकना बता रहा है, आज चमा चांद का दमकना बता रहा है, आज सितारों का चमकना बता रहा है, आज हवा का चलना बता रहा है, आज चिड़ियों का चहचहाना बता रहा है, आज फूलों का खिलना बता रहा है, आज पौधों का बढ़ना बता रहा है। आज ये पूरा कायनात का निजाम ये बता रहा है। सूरज चमक, चांद चमक कर बता रहा है कोई वारिसे मुस्तफा बाकी है। सूरज दमक कर बता रहा है कोई फर्जंदे अली बाकी है। सितारे चमक कर बता रहे हैं कोई फातिमा का लाल बाकी है। जब तक फातिमा का लाल बाकी है उस वक्त तक कायनात ऐसी सजी रहेगी, जिस दिन उस लाल की शहादत हो जाएगी खुदा कायनात को समेट देगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। या अली अल्लाह। लिहाजा मैंने एक सवाल का भी जवाब दिया, दूसरा भी बाकी है। एक से जो आगा जवादी ने फरमाया, क्या ये पूरी कायनात जो बनाई गई है ये इंसान कामिल के लिए बनाई गई है, लेकिन उन्होंने साथ कहा अल मुफल मुदब्बिरात अमरा, यानी जो मलाइका हैं, अल्लाह के जो मलाइका हैं वो भी इंसान कामिल की खिदमत के लिए आए हैं, उनको भी खिदमत गुजार खुदा ने बनाया है। तो इज़ान मोहतरम, हमने एक ही सुरूह ज़मीन पर खानदान देखा कि उसके घर की खिदमत गुजार मलाइका हुआ करते थे। कभी रिजवाने जन्नत बनकर आते थे, कभी झूला झुलाने आ जाते थे, कभी लिबास लेकर आ जाते थे, कभी चक्की चलाने आ जाते थे, कभी रोटियां लेने आ जाते थे, कभी मिस्कीन बनकर आ जाते थे, कभी यतीम। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।
हमने यही खानदान देखा जहां पर मलाइका जिब्राइल आए तो भी इजाजत ले रहे हैं, इजराइल आए तो वो भी इजाजत ले रहे हैं। ये वो मलक है जो कहीं इजाजत नहीं लेते, इस खानदान के पास आते हैं तो वुरूद चादर में भी इजाजत चाहते हैं, घर में दाखिल होना इजाजत चाहते हैं, क्योंकि खिदमत गुजार अहले बैत हैं। लिहाजा इनके लिए कहा गया मुख्तलफल मलाइका, वो ये हस्तियां हैं जिनके पास मलाइका का आना जाना रहता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस नामाना में इंसान को अपना खलीफा बनाया। हिदायत के लिए खुदा ने इनके लिए एहतमाम किया, ये हिदायत के लिए आए थे। लेकिन आगे जो आयत कहती है जाने मोहतरम, आयत का जो अगला हिस्सा कहता है, जब अल्लाह ने ऐलान किया तो मलाइका ने कहा अतज अलो फीहा मयुफ्सिदु फीहा व यस्फकु दिमा। अब हमें तफसीर में बहुत सारे एहतमाल दिए गए। तफसीर में बयान किया गया कि मलाइका को कहाँ से पता चला कि ये खून रेजी करेंगे। अभी तो पहला इंसान बन रहा था, खून रेजी करेगा, ये फसाद के मलाइका कहाँ से पता। उलमा ने मुख्तलिफ एहतमाल दिए। सबसे कवी एहतमाल जो है वो यही है कि लफ्ज़ अर्ज इस्तेमाल खुदा ने किया था। अभी उसी को मैं बयान करूंगा। बाज़ एहतमाल ये कि खुदा ने किसी और जगह से न्यूज़ उन्हें पहले दे दी थी, बता दी थी कि इंसान का मिजाज ऐसा है। बाज़ जगह एहतमाल दिया गया कि नहीं, इंसान से पहले शायद इस आलम में या किसी और आलम में इंसान जैसी कोई मखलूक थी, उसका यही हाल था। शायद मलाइका को एक्सपीरियंस रह चुका था, इसलिए उन्होंने कहा। इसके मुख्तलिफ एहतमाल हैं। ये सिर्फ इल्मी गुफ्तगू है, इसमें हमारे को हिदायत का इंतजाम नहीं। गुफ्तगू वहां होनी जहां हमारी हिदायत का एहतमाम हो। लेकिन जो बात है, मलाइका को ये बात किसी ना किसी तरह पता जरूर चल गई और खुदा बंदे मुताल ने इनकार भी नहीं किया। खुदा ने ये नहीं कहा मलाइका कि तुम गलत कह रहे हो, ना खुदा बंदे मुताल ने मलाइका तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ना खुदा बंदे मुताल ने उनकी बात की तायीद की और ना खुदा बंदे मुताल ने उनकी बात की मुखालफत की। खुदा बंदे मुताल ने एक हकीमाना जुमला बोला, इन्नी आलम मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। लिहाजा मैं जानता हूं, तुम सरसरी बातों को देख रहे हो, तुम जाहिरी चीजों को देख रहे हो, हम हकीकतों को देख रहे हैं। मैं यहाँ पे एक मिसाल दिया करता हूँ, हकीकतों कैसे देखते हैं अज़ीज़ान मोहतरम। ये कि जो माली होता है वो खिदमत करता है, बाग में बहुत दिन और रात लगा रहता है। एक किसान होता है जो फसलों को पानी लगाया करता है, लेकिन वहां पे कीड़े भी होते हैं, मकोड़े भी होते हैं, पत्ते भी होती हैं, जड़ी बूटी भी होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, परिंदे भी आते हैं, लेकिन वो उनकी परवाह नहीं करता। उसे अपनी फसल की फिक्र होती है, वो इसलिए खिदमत करता है। वो ये नहीं देखता कि इस दरख्त पे सेब कितने लगेंगे और इस दरख्त पे पत्ते कितने हैं, इस दरख्त में लकड़ी कितनी है। उसको लकड़ी की फिक्र नहीं होती है, उसे पत्तों की फिक्र नहीं होती है। बस वो ये देखता है कि इसमें फल कितने आएंगे, सेब कितने लगेंगे, आम कितने आएंगे, फ्रूट्स कितने आएंगे, गंदुम कितनी आएगी, जौ कितनी आएगी। वो उन फ्रूट्स को देखता है, उनके फूल पत्तों को, कांटों को, लकड़ियों को, जड़ी बूटियों को, किसी चीज को नहीं देखता। वो इनके लिए खिदमत करता है। हाँ, साथ साथ जो है जड़ी बूटियां भी पल जाती हैं, जानवर भी पल जाते हैं, पत्ते भी पल जाते हैं, तना भी पानी पीता है, शाखें भी पानी पीती हैं, मट्टी भी पानी पीती है, हैवानात हशरात भी पानी पी लेते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद वो फ्रूट्स होते हैं, उनके लिए वो सब खिदमत कर रहा होता है। मलाइका तब जनरल तौर पे आम इंसान को देख रहे थे और खुदा इंसाने कामिल को देख रहा था। वो कह रहा था जिनके लिए मैंने बनाया है उनके लिए ये वर्द रखता है कि ये कायनात सजाई जाए। तुम क्या जानो नूरे मुस्तफा क्या है, तुम क्या जानो नूरे मुर्तजा क्या है, तुम क्या जानो नूरे मुस्तफा क्या है, तुम क्या जानो नूरे हुसैन क्या है। तुम्हें क्या पता फातिमा का मकाम क्या है। फातिमा असरार इलाही में से एक सिर का नाम है। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद का। अज़ान मोहतरम, आपसे गुजारिश है, जैसे कि पहले भी ऐलान हुआ और ज़ाहिर है इदारा-ए-जाफ़रिया आप लोगों की खिदमत जो आप करते हैं उसी के ज़रिए चल रहा है और काफ़ी काम भी इदारे में जारी है। ये तमाम जो है आपके डोनेशन से और आपकी खिदमत से होता है। खुदावंद मुताला आपके रिज़्क़ रोज़ी बरकत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा आप मोमिनीन ने इदारे-ए-जाफ़री के साथ ताउन किया, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इदारे को ज़रूरत पड़ी हो मोमिनीन ने ताउन नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतने साल से खुद देख रहा हूँ। इसी तरह आप लोग जो है इदारे के साथ ताउन करते रहें। खुदावंद मुताला आपके रिज़्क़ रोज़ी में बरकत अता फरमाए।
मोहम्मद वाले मोहम्मद बाद बुलंद सलावत। हुसैन अजमतों का शहंशाह है, हुसैन अजमतों का शहंशाह है, इस्लाम की बका हुसैन से है। इमामत की फहरिस्त में 14वीं के चांद सी चमक हुसैन से है। अरे जाग जाओ ऐ मुसलमानों, अरे जाग जाओ ऐ मुसलमानों, के नजात और शफाअत मिलती हुसैन से है। फित्रुस और राहिब से जरा पूछो, फित्रुस और राहिब से जरा पूछो, अता हुई है अता हुसैन से है, अता हुई है अता हुसैन से। बाअज़मते अबा अब्दुल्लाह हुसैन मज़लूम शहीद में करबला बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अज़ान मोहतरम, यकीनन खुदावंद मुताल ने जब जनाब आदम को खल्क किया तो खल्क करके जना खुदा ने इस दो निज़ामों की तरफ, जो एक मैं बयान कर रहा था निज़ाम हिदायत, अब आते हैं उस निज़ाम में इंसानियत की तरफ, क्योंकि मौजू हमारा ये है निज़ाम हिदायत और इंसान। खुदावंद मुताल ने इन दो चीज़ों के लिए इस कायनात को खल्क किया और जनाब आदम से सिलसिला शुरू हो रहा है। और खुदा तमाम ये बिसात जो इसलिए बनाई गई है, बहरहाल मलाइका को तो नहीं पता था, मलाइका के ये हमें तो नहीं पता कि मलाइका को कैसे पता चला, लेकिन हाँ आगा जवादी ये जो इस वक्त इस सदी के हमारे सबसे बड़े मुफस्सिर कुरान हैं, 40 साल उन्होंने तफसीर का कुरान का दर्ज दिया है। अभी इसी साल 2020 में या 21 में या 20 में जो उनकी तफसीर 40 साल के बाद कंप्लीट हुई है, इसरा के नाम से उनका जो है वेबसाइट है, तफसीर का नाम नसीम तफसीर है, और ये शागिर्द अल्लामा तबातबाई के इस वक्त जो है जहान तशय्युर के सबसे बड़े जो है मुफस्सिर कुरान है। तो उनका जो नजरिया वो ये है कि ये मलाइका ने जब अल्लाह ने कहा इन्नी जाइलुम फिल अर्द खलीफा, जब अल्लाह ने कहा मैं जमीन पर खलीफा बना रहा हूं, तो जमीन एक मादी चीज थी, लिहाजा वो समझ गए कि मादियत में जो है, मादियत का जब नाम आए तो आप ये बात साइंटिफिक तौर पे प्रूव है, ये बात वो चीज महदूद होती है, महदूदियत पाई जाती है। और उधर से उनको ये पता चल गया था इंसान को अल्लाह ने ख्वाहिश देकर भेजा है, इंसान को अल्लाह ने विल देकर भेजा है, यानी ये दो खुसूसियात इंसान के अंदर हैं, ख्वाहिशात भी पाई जाती हैं और इख्तियार यानी विल भी पाई जाती है। उधर से उनको जमीन से ही लफ्ज पता चल गया था कि ये जमीन जो है एक महदूद जगह का नाम है। जब उन्होंने इन दोनों का राबता आपस में जोड़ा, कहा कि जब इनको ख्वाहिश भी होगी और इनके पास विल भी होगी, और कायनात जो है मादी है, ये मादी चीजें महदूद होती हैं, जब इन्हें जरूरत होगी तो खुद ब खुद तज़ाहुम पैदा होगा, खुद ब खुद झगड़ा पैदा होगा। अगर नेमतें बहुत वाफिर हो, उनकी जरूरत ना हो तो झगड़ा नहीं होता, लेकिन कोई भी नेमत महदूद हो तो उसमें फसाद हो जाता है। मिसाल के तौर पर, लेकिन उसमें शर्त एक है कि जरूरत भी हो। मिसाल के तौर पे अगर समंदर के अंदर एक खास किस्म की मछली है जो बहुत नायाब नस्ल है, दुनिया में फ्यू उसके जो है मेंबर्स हैं, हंड्रेड्स के अंदर उसके मेंबर्स हैं, तो हमें इससे क्या ताल्लुक? हमें कोई ताल्लुक नहीं है। उसके हंड्रेड्स हो, 100 से 50 हो जाएंगे तो हमें कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि उनसे हमारी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसी रुए जमीन, जैसा कि आइंदा के लिए ये प्रिडिक्शन की जा रही है कि जमीन पर आइंदा जो जंगें होने वाली हैं वो पानी के ऊपर जंगें होंगी, क्योंकि पानी जरूरत है, पानी जो है जरूरत है। और जब ये पानी महदूद हो जाएगा तो इंसान से लड़ पड़ेगा, इंसान को। और अभी भी आप दुनिया को देख रहे हैं, जिसका जोर पड़ जाता है वो पानी को काट लेता है, वो डैम बना लेता है, वो पानी को रोक लेता है। ये दुनिया में आज भी हो रहा है। लिहाजा कहने का मकसद ये कि उनको ये 4 चीजों का पता था। इंसान के पास विल है, इंसान के पास जो है ख्वाहिश है, डिजायर्स हैं जिसको हम कहते हैं, डिजायर्स भी रखता है और ये विल भी रखता है। ऊपर से कायनात जो है महदूद है, लामहदूद नहीं है। ये जमीन एक महदूद है, इसके वसाइल महदूद हैं, फिर चौथी तरफ इनको उसकी जरूरत भी है। तो लिहाजा यहां पर अज़ान मोहतरम ये 4 चीजों को अगर जमा करें तो यकीन कर लें इंसान इस दुनिया में जिंदगी नहीं गुजार सकता जब तक के साबिर ना बन जाए, जब तक के कानी ना बन जाए। दीन जो हमें सब्र की इतनी ज्यादा ताकीद करता है
और कल अर्ज़ भी कर रहा था, इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, खुदावंद मुताल कहता है मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। अजीजान मोहतरम, जब खुदा सब्र कहाँ पर होता है? जब मसाइब आते हैं, जब मुश्किलात आती हैं, जब महदूदियत आती है। आज हमारे दरमियान सब्र क्यों खत्म होता जा रहा है? सब्र खत्म हो चुका है। मैं एक मिसाल देके बात को आगे बढ़ा दूं। अजीजान मोहतरम, मसला क्या है? मैं एक जनरल सी मिसाल दूंगा और वो हमारे तमाम रिश्तों में पाई जाती है, और हम गौर करें। चाहे मियाँ बीवी का वो रिश्ता हो, चाहे वालिदैन औलाद का वो रिश्ता हो, चाहे भाई बहन का वो रिश्ता हो, चाहे भाई का भाई से वो रिश्ता हो, चाहे बहन का बहन से रिश्ता हो, चाहे एक नेबर का नेबर से रिश्ता हो, चाहे एक मोमिन का मोमिन से रिश्ता हो। ये जितने रिश्ते होते हैं ये कब खराब होते हैं, ये कब टूटते हैं? ये टूटते ये हैं कि हमारा मसला ये है कि हम खुद तब्दील होना नहीं चाहते, दूसरों को तब्दील करना चाहते हैं। जब हम दूसरों को तब्दील करने में लग जाते हैं और खुद तब्दील नहीं होना चाहते, तो फिर इख्तिलाफात आते हैं, इख्तिलाफात जन्म लेते हैं। और इसकी सबसे बड़ी जो मिसाल होती है, भाई भाई के बगैर तो जिंदगी नहीं गुजार सकता, बहन बहन के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकती, और ये रिश्ते बड़ी मुश्किल से टूटते हैं, हकीकत है। और जिन घरों में टूट जाते हैं तो वाकई वो घर जो है काबिल बहुत अफसोस हैं कि खून के रिश्ते तोड़ देते हैं। जायदाद के नाम पर, विरासत के नाम पर, माल के नाम पे, इज्जत के नाम पर, अपने रस्म और रवाज के नाम पे, तूने सलाम नहीं किया, तूने मुझे शादी में बुलाया, मेरी तस्वीर नहीं खींची, उसकी तस्वीर खींची गई, फला। इतनी छोटी छोटी बातों में भाई बहनों की बातें खत्म हो जाती हैं, खानदान तोड़ दिए जाते हैं। ये तो बहुत अफसोसनाक बात है। लेकिन मैं तो एक सीरियस टॉपिक की बात कर रहा हूं जो वाकई सीरियस है। दुनिया में एक तयशुदा चीज है अजीजान मोहतरम, तयशुदा चीज है कि दो भाई भी हम मिजाज नहीं होते, दो बहनें भी हम मिजाज नहीं होती। तो फिर हम जब एक नेबर दूसरे नेबर से मिलता है, एक फर्द दूसरे फर्द से मिलता है, एक मोमिन दूसरे, तो कैसे इस बात को कहता है कि वो हम मिजाज हो जाएं, और खुसूसन ज़ौजैन जब शादी होती है तो कैसे वो ये तसव्वुर करते हैं कि हम दोनों एक मिजाज के हो जाएं? होता क्या है, हमारी माशरे में निकाह कर दिया जाए, दीनी माशरा तो निकाह कर देते हैं, वरना जहां गैर दीनी माशरा तो वहां मंगनी कर देते हैं। जहां हिंदुआना माशरा अब तक राइज है वहां लड़के लड़की की मंगनी कर देते हैं, उसके बाद तुम चैटिंग करो, बातें करो, सब जायज हो जाता है। ये दीन का हुक्म नहीं है, ये हिंदुओं का हुक्म है, ये हिंदुआना रस्म है। इस्लाम में मंगनी मंगनी नहीं, इस्लाम में निकाह है। निकाह करो, अगर इन चाहते हो चैटिंग करें, ये बातें करें, तो इनका निकाह कर दो। निकाह करने से ये हलाल हो जाते हैं, मंगनी करने से कोई हलाल नहीं होता। लेकिन हाँ, होता क्या है कि आप वो दो स्पाउस जो होते हैं, दोनों चाकी पूरी, आज के बता रहा हूं जो है हमारे दरमियान, दोनों स्पाउस ये चाह रहे होते हैं कि वो हमारी तरह हो जाए, वो कहते हैं वो हमारी तरह हो जाए। इसी चक्कर में वक्त गुजर जाता है और फिर डिफरेंसेस शुरू हो जाते हैं, फिर इख्तिलाफात शुरू हो जाते हैं। मैं मिसाल दूं और इसके बाद बात को तमाम करता हूं। एक ट्रेन की आप मिसाल लें, दो ट्रेन की मिसाल लें। एक ट्रेन ईस्ट जा रही है और एक ट्रेन वेस्ट जा रही है। वेस्ट वाली ट्रेन चाहती है कि ये ईस्ट वाली मेरे रास्ते पर आ जाए, और वेस्ट वाली चाह रही है ईस्ट से कि वो मेरे रास्ते पर आ जाए। यानी वेस्ट वाली चाह रही ईस्ट वाली इधर आ जाए, ईस्ट वाली चाह रही वेस्ट वाली आ जाए। दोनों अपना जोर लगाते रहें, कभी भी दोनों एक दूसरे के रास्ते पे नहीं जाएंगे। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, मैं मिसाल फिजिकल इसलिए दे रहा हूं, अंदर खानदानों में, रिश्तों में, मोहब्बत में, दिलों में दूरियां कैसे पैदा होती, ऐसे पैदा होती हैं। वो दो ट्रेनें जो थी, जो अगर एक कम फासले पे थी, लेकिन उन्होंने इस बात को तय किया था ड्राइवर्स ने कि ये मुझे फॉलो करे, वो कह रहा था ये मुझे फॉलो करे। होते होते क्या होगा, जितना ये एक दूसरे को कहते रहेंगे उतने एक दूसरे से दूर होते रहेंगे, और एक वक्त इतना दूर हो जाएंगे कि आपस में इनका राबता ही खत्म हो जाएगा। आपस में राबता, और दूसरी क्या सिनेरियो, तीन बन सकते हैं। दूसरा ये है, इनमें से कोई एक कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। एक कहेगा भाई तुम नहीं, वेस्ट वाला कहेगा भाई ईस्ट वाला तो नहीं आता, चलो मैं इसके पीछे चला जाता हूँ। या ईस्ट वाला कहेगा भाई जो है वो नहीं आता, चलो मैं जो वेस्ट वाले के पीछे चला जाता हूँ। कोई एक चला जाएगा तो क्या होगा, एक दिन ये मीट कर जाएंगे, एक दिन इनका वक्त गुजर जाएगा, दोनों साथ हो ही जाएंगे, किसी प्लेटफॉर्म में मिल ही जाएंगे दोनों। लेकिन पहली सूरत में नहीं मिलेंगे। क्यों? दोनों अपनी तरफ खींचना चाह रहे थे। बिल्कुल यही अंदाज जाने मोहतरम हमारे घरों का अंदाज हो चुका है। बीवी ये चाहती है कि शौहर मेरी मर्जी के मुताबिक हो जाए, शौहर ये चाहता है कि बीवी मेरी मर्जी के मुताबिक हो जाए। ये मुमकिन नहीं है। जब तक ये दोनों चाहते रहेंगे तो ईस्ट और वेस्ट की ट्रेन में बैठे हुए हैं,
ये जितना चाहेंगे उतनी तेजी से दूर होंगे। किसी या तो एक को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, वरना बेहतरीन तरीका क्या है? बेहतरीन तरीका ये कि उसी दो ट्रेन की मिसाल ले लीजिए, जो एक ईस्ट की तरफ एक वेस्ट की तरफ है। ईस्ट वाला चाह रहा है मैं वेस्ट ट्रेन की तरफ पहुंच जाऊं और वेस्ट वाला चाह रहा है मैं ईस्ट की तरफ पहुंच जाऊं, तो यकीन कर लीजिए एक वक्त और जल्द से जल्द वो वक्त आ जाएगा, क्योंकि दोनों ने अपना रुख तब्दील किया होगा, तो दोनों एक न एक जगह के मिल जाएंगे और रहने लगेंगे बिल्कुल इसी अंदाज से जिस दिन ज़ौजैन ये समझ लें कि मुझे बदलना नहीं है, मुझे खुद तब्दील होना है। उस दिन एक वक्त जल्दी आ जाएगा जब दोनों एक दूसरे के लिए अपने आप को तब्दील करना शुरू करेंगे, तो यकीन जाने मोहतरम वो वक्त जल्द आ जाएगा जब ये मियां बीवी एक छत के नीचे रहने के लायक हो जाएंगे, ये एक साथ रहने के लायक हो जाएंगे। लेकिन दुनिया में होता क्यों नहीं है? वो वजह ये है कि हमें अल्लाह सुब्हान व तआला कहता है कि तुम सब्र करो, हमसे सब्र नहीं होता। हमने जो है एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं है, पेशेंस खत्म हो चुका है, भाई को भाई की नहीं बर्दाश्त है। तो ऐसा नहीं मतलब मैंने फिजिकल मिसाल इसलिए ताकि बात समझने, दिलों की नजदीकी और कुर्बत इसी अंदाज से होती है। अगर दिल को अपनी तरफ खींचना चाहेगा तो कभी नहीं खींचता है, खुद अपने दिल को उसकी तरफ लगा दो, इंसान ये चाहे। और सब्र के माने ही है अजीजान मोहतरम, जो अल्लाह ताला बताता है उस सब्र के क्या माना है? सब्र के माने ही है कि छोड़ो जो होना है दुनिया में, हर चीज हमारी मर्जी से नहीं होती, इस बात को हम मान लें, तस्लीम कर लें। और जब इंसान इस बात को तस्लीम कर लेता है कि हर चीज मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं होती, तो फिर उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर ही लेता है, उसके साथ फिर रह लेता है। अब वो कुछ आदि से मैं बाद में बयान करूंगा, अभी असल बात बयान करूं। फिर रह लेता है। मिसाल, किसको अपनी टूटी टांग पसंद है? किसी को पसंद है टूटी टांग, किसी को नहीं पसंद है। किसी को पसंद है क्रिस्टॉल उसको हो जाए, नहीं पसंद है। किसी को पसंद है उसको शुगर हो जाए, नहीं पसंद है। किसी को पसंद है उसे ब्लड प्रेशर हो जाए, नहीं पसंद है। वो इलाज कराए सब, क्या ब्लड प्रेशर नहीं छूट रहा भाई, शुगर का इलाज नहीं हो पा रहा, ये टांग टेढ़ी हो गई है, ऐसी टूटी है कि अब हमें लंगड़ा के ही चलना है। तो उसके मायने तो नहीं टांग काट के फेंक दी जाए, उसके मायने तो नहीं इंसान अपनी जान दे दे, इंसान कॉम्प्रोमाइज कर लेते। भाई ये नहीं बदल सकता, चलो मैं अब शुगर के साथ जीते के देखता हूं, चलो मैं ब्लड प्रेशर के साथ जी के देखता हूं, चलो मैं टूटी टांग के साथ जी के देखता हूं। अगर ये फिक्र हमारी रिश्तों के साथ हो जाए कि अगर कोई बात नहीं, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा भांजा है, ये मेरी जौजा है, ये मेरा शौहर है, ये मेरी औलाद है, ये मेरे वालिदैन हैं, ये मेरे बच्चे हैं। इंसान इस बात को सोच ले, चलो ये ठीक नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, ये नहीं बदल रहा, मैं इसके साथ वक्त गुजार देता हूं, मैं इसके साथ वक्त गुजार देती हूं। खुदा तो सब्र करने वालों के साथ है, इस दुनिया में नहीं तो उस दुनिया में खुदा में अजर दे देगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये वो होगा जो इंसानी कमाल होगा। इंसानियत का कमाल सब्र में पाया जाता है, बेताबी में नहीं। बस आखिरी जुमला, उसके बाद तमाम। अज़ीज़ान मोहतरम, दलील के तौर पे दे रहा हूं, हर इंसान की जिंदगी में ऐसा आता है, ऐसा नहीं होगा किसी की जिंदगी, हर ने एक्सपीरियंस किया होगा किसी ना किसी जिंदगी के मोड़ पर कि उसने बेसब्री दिखाई थी और उस बेसब्री का उसने नतीजा भी देखा है, कितने बड़े उसको नुकसान हुए हैं। उसने बेसब्री का नतीजा देखा होगा अपनी जिंदगी कि उसको नुकसान कितने बड़े हुए हैं। इंसान के लिए अगर पूछा जाए कि तुम सब्र क्यों करो, तो इंसान के लिए एक्सपीरियंस काफी है कि अगर मैं सब्र कर लेता तो इतना बड़ा डैमेज ना आता। हर इंसान को पता चल जाता है कि अगर वो इंसान बाद में रियलाइज कर लेता है, मसला क्या होता है, हम फौरन उसका रिजल्ट चाह रहे होते हैं, बस अभी रिजल्ट चाह रहे होते हैं। नहीं अजीजान मोहतरम, इंसानी जिंदगी में ऐसे आसानी से रिजल्ट नहीं आता है, मेहनतों के बाद, जहमतों के बाद रिजल्ट आता है, बरसों गुजर जाते हैं फिर इंसान को रिजल्ट मिलता है। लिहाजा जब 10 साल 15 साल गुजर जाएंगे तब पता चलेगा कि अगर मैंने उस वक्त सब्र कर लिया होता तो आज मैं किस मकाम पे होता, मेरी औलाद शायद मेरे साथ होती, मेरी जौजा मेरे साथ होती, मेरा भाई मेरे साथ होता। उस एक लहजे सब्र ना करने से जो मैंने नुकसान उठाया है। अजीजान मोहतरम, सब्र करने की बस दलील यही काफी है, जो इंसान को तजर्बा हो गया उसको दोबारा तकरार न करे, दोबारा ऐसा ना है कि इंसान फिर बेसब्रा हो जाए और इंसान सब्र में कोई ऐसा डिसीजन ले ले जो हमको एक दूसरे से जुदा कर दे। इंसान उनसे भी गया है, इंशाल्लाह बाद में बयान करूंगा। इंसान मानूस हो जाता है, इंसान एक घर में रहने लगता है ना, तो उस घर से भी उन्स हो जाता है। तो आप तसव्वुर करें, बीवी के साथ रह के उन्स क्यों नहीं हो रहा, शौहर के साथ रह के उन्स क्यों नहीं हो रहा है।
इसलिए उनसे नहीं हो रहा है कि सब्र नहीं है, तबीयत में खुदा ने ऐसे ही बनाया है। इंसान इसी तरह से अजीज़ान मोहतरम, यकीनन ये फर्श अज़ा, ये सैयद शुहदा की कुर्बानी जो है, उसका नतीजा, उसका असर जो है वो यही है कि इंसान हिदायत याफ्ता हो जाए, इंसान इंसानियत के दरवाजे पर आ जाए, इंसान इंसान होकर जिंदगी गुजारे, हैवानियत में न तब्दील हो जाए। यही अमल बिल मारूफ नहीं मुनकर इमाम अलैहिस्सलाम चाहते थे। और मौला अलैहिस्सलाम, किसी ने एक अच्छा सवाल उठाया कि हम इस बात पे तो रोते हैं और आज भी हम इस बात पे रोएंगे कि हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ दिया, लेकिन ये क्यों नहीं सवाल करते कि हुसैन ने मदीना छोड़ा, जिस बना पे छोड़ा वो इल्लत बड़ी है। आज़िज़ान मोहतरम, वो जमाना आ गया हुसैन पर कि हुसैन ने को मदीना छोड़ना पड़ा, किसी को अपना आबाई घर छोड़ना पड़े, आबाई शहर छोड़ना पड़े, जहां पर माँ की कब्र भी हो, भाई की कब्र भी हो, नाना की भी कब्र हो, उस शहर को अगर किसी को छोड़ना पड़े तो बड़ा सख्त गुजरता है। आजीजो, जब रात की तारीकी में तकुल बाब होता है और पैगाम आता है कि वाली मदीना ने आपको बुलाया है, एक मर्तबा ज़ैनब उलिया मकाम घबरा जाती हैं, इस वक्त रात को क्या हुआ है। जब बुलाया गया तो वहां पर खबर क्या दी गई, कहा माविया इस दुनिया से जा चुका है और यजीद तख्ते खिलाफत पर बैठ चुका है और यजीद ने आपसे बैत तलब की है, आपसे बैत चाहिए। तो इमाम अलैहिस्सलाम वलीद को जवाब देते हैं कि तुम अगर बैत लेना चाहते हो, इस रात की तारीकी में क्यों मुझसे बैत ले रहे हो, मुझे दिन की रोशनी में बुलाना, फिर मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा। अजीजान मोहतरम कहकर इमाम चल देते हैं। इमाम तन्हा नहीं गए थे, नौजवानों के साथ गए थे, जवान बनी हाशिम के साथ गए थे, जाओ हशम के साथ गए थे। अजीजों, वहीं पे बैठा मरवान बैठा हुआ था, उसने पलट कर वलीद से कहा, देखो अगर तुम चाहते हो हुसैन से बैत लेना तो अभी हुसैन से बैत ले लो, क्योंकि यजीद ने कहा था या हुसैन से बैत ले लो या हुसैन का सर तन से जुदा कर दो। कहा या तो हुसैन का सर तन से जुदा भी कर दो या हुसैन से बैत ले लो, तुम्हारे बाद में काबू में ना आएंगे। एक मर्तबा पलट के हैदर कर्रार के फरसत ने कहा, तू अली के बेटे को मौत से डराता है। बस ये जुमला ऐसा था कि मौला की आवाज बुलंद हो गई। आवाज का बुलंद होना था कि अबुल फजल अब्बास दारुल अमारे के अंदर दाखिल हो गए, परेना तलवार के साथ जवाना ने बनी हाशिम आ गए और अब्बास आगे आगे कहते हैं, वलीद ए मरवान, किसमें ऐसी जुर्रत हुई, कैसे मेरे हुसैन की आवाज बुलंद हो गई, मेरे हुसैन का आवाज बुलंद करना पड़ा। मैं कहूँगा मौला अब्बास, आपको हुसैन की आवाज बुलंद होना पसंद नहीं। अरे ज़ैनब उलिया मकाम से पूछिए, ज़ैनब ने अपने भाई का संदेशे पे अलम देखा, हाँ जनाब अब्बास के शानों पे हाथ रख के कहा, भैया अब्बास मकाम में सब्र, आप यहाँ से वापस चले, घर वापस चले आते हैं। जनाब फिजा दरवाजे पर है, फिजा जनाब फिजा कहती, बेटा हुसैन जल्दी से जाके ज़ैनब की खबर लो, बड़ी परेशान है, 70 मरतबा दर खैदर पे आ चुके, खाने पे आ चुकी है। जनाब ज़ैनब पास गए, कहा भैया खैरियत तो है, इतनी रात को क्यों बुलाया था, मेरा बड़ा दिल घबरा रहा था, अल्लाह का शुक्र है कि आप आ गए। हुसैन ने सर झुका कर कहा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए ज़ैनब, अब हमें मदीना छोड़ना पड़ेगा, अब हुसैन मदीने में नहीं रह सकता, मुझे मदीना तर्क करना पड़ेगा। मौला इतनी जल्दी मदीना तर्क करना हुसैन जनाब ज़ैनब के लिए अजीजों यही वक्त बड़ा सख्त था कि कैसे जनाब ज़ैनब बर्दाश्त करती। जनाब ज़ैनब ने एक सवाल किया, भैया अगर मदीने को छोड़ने का इरादा कर लिया है, क्या ये ज़ैनब को अपने साथ लेकर चलेंगे? भैया मना न करना, ज़ैनब रह नहीं सकती है, मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन शरीयत का हुक्म। हुसैन ने कहा, इमाम कहते हैं बहन ज़ैनब आपका मामला अब्दुल्ला के साथ है, जाए अब्दुल्ला से इजाजत ले लें, फिर आप हमारे साथ चलिएगा। अजीजों, जनाब ज़ैनब घर जाती है, जनाब अब्दुल्ला सो रहे हैं, आराम फरमा रहे, पैरों के पास खड़ी होकर गिरिया करने लगी। जब ये अश्क गिरे जनाब अब्दुल्ला के कदमों पर,
पैरों को समेट कर कहा, ए फर्जंदे बतूल, ए जिगर गोशे अली, आप आज कदमों के पास क्यों है? कहा अब्दुल्ला, मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा है, लेकिन आज कुछ मांगने आई हूँ अब्दुल्ला, लेकिन मना न करना। कहा आप जो भी कहना चाहती है बगैर मुकदमे के कह दीजिए, जैसा आप चाहती वैसे ही करूंगा। कहा अब्दुल्ला, मेरा हुसैन मदीना छोड़ा है, मेरा भैया मदीना छोड़ा है, क्या मुझे इजाजत है कि मैं मदीना से हुसैन के साथ जाऊं? जनाब अब्दुल्ला ने कहा इजाजत है, जहाँ आप हुसैन के साथ जाना चाहे जाए। अजीजों इजाजत मिल गई, सामाने सफर बांधा गया। ये 26 रजब की बात है। 28 रजब को सुबह सवारियां तैयार की गई और सवारियों का एहतमाम हुआ। ऐलान होता है कि आज हुसैन चले जाएंगे, लेकिन अजीजों आखिरी शब जो मदीने में गुजरी, हुसैन पर वो कयामत की शब थी। एक मर्तबा मज़ारे रसूल पर जाकर कहा, ए नाना जान, आपकी उम्मत रहने नहीं देती, नाना अब आपकी कब्र को छोड़ना पड़ेगा। हुसैन तावीज़ कब्र से लिपट गए और इतना गिरिया किया रसूलुल्लाह की कब्र पर, का नाना जानम से मदीना छुटता है। क्या आलम गश में रसूलुल्लाह को देखा, सर पर अमामा नहीं है, खाक सर पे पड़ी है। कहा बेटा, मेरा दीन बचाने के लिए तुम्हें करबला जाना पड़ेगा, बहनों को ले जाना पड़ेगा। हुसैन उठते हैं, ऐसा में हुक्म देते हैं कि चलो हमें अब करबला का सफर है, अब हमें मक्के जाना है, फिर करबला जाना है। अजीजों सफर का एहतमाम का हुक्म देते हैं। एक मर्तबा जन्नतुल बकी का रुख किया, अपने भाई की कब्र पे गए, भाई की कब्र से रुखसत हुए, फिर अपनी माँ की कब्र पे गए, माँ की कब्र का जो उन्वान लिखा लोगों ने और इसी तरह बयान किया। जब हुसैन माँ की कब्र पर गए हैं तो हुसैन घुटनों के बल और कोनियों के बल चल कर गए। ए मेरी करीमा माँ, ए मेरी ताहिरा माँ, ए मेरी सिद्दीका माँ, हुसैन से ये कब्र छुटी जाती है। हुसैन जा रहा है मदीना छोड़कर। कब्र से आवाज आई, ए मेरे बच्चे परेशान न होना, जहां भी तू जाएगा तो कियारी माँ साथ होगी। ए मेरे बच्चे सामाने सफर बांधो। रावी कहता है सामाने सफर तैयार किया गया, कनाते बांध दी गई, ऐलान कर दिया गया कोई कनातों के करीब ना आए। अजीजों रावी कहता है मैं देख रहा था एक एक हमारी लाई जाती थी, एक एक बीबी को बिठाया जाता था, एक एक हमारी लाई जाती थी। किसी को अली अकबर सवार करते, किसी को अब्बास सवार करते, किसी को कोई और नौजवान सवार करता, लेकिन कहता मैंने देखा एक मर्तबा एक मुखद्दरा बरामद हुई, हुसैन ने अपनी कुर्सी छोड़ दी, अब्बास भी आगे बढ़े, अली अकबर भी आगे बढ़े। एक तरफ से हुसैन ने बाजू को पकड़ा, दूसरी तरफ से अली अकबर ने, हुसैन अब्बास ने अपने जानू को बढ़ा दिया। ऐ सिद्दीका, ऐ ताहिरा मेरे जानू पे सवार हो जाए। कहा मैंने पूछा ये कौन है? कहा ये ज़ैनब औलिया मकाम है। मैं कहूँगा ए मौला, ए रावी तूने ये वाक़े को बयान कर दिया। ये ज़ैनब इस अंदाज से, इस वक़ार के साथ हमारियां लगी थी, कजावे सजे हुए थे, कनाते लगाई गई थी, भाई सवार कर रहा था, भतीजा सवार कर रहा था। उस वक्त ज़ैनब पर क्या गुजरी होगी जब 11 मुहर्रम को एक मर्तबा एक एक को बीबी ने सवार किया, फिर मख्तल की तरफ रुख किया। अरे अली अकबर, ए मेरे भाई अब्बास, ए भैया हुसैन, मैंने सबको सवार कर दिया। ऊँट भी बेकजावा है, ज़ैनब भी बेरिदा है, कोई ज़ैनब को सवार न। अला लानतुल्लाहिल कौमिज़ ज़ालिमीन। मातम हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।
Ya Hussein, 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 Ya Hussein. बिछ गया फर्शे अज़ा आ गया माहे मुहर्रम बिछ गया फर्शे अज़ा अर्श से आंसू बहाने आ गई है फातिमा आ गया माहे मुहर्रम बिछ गया फर्शे अज़ा आ गया माहे मुहर्रम बिछ गया फर्शे अज़ा अर्श से आंसू बहाने आ गई है फातिमा आ गया माहे मुहर्रम बिछ गया फर्शे अज़ा आ गया माहे मुहर्रम बिछ गया फर्शे अज़ा ज़ेब तन अहले अज़ाने कर लिए काले लिबास हाथ है सीनों पे आंसू आंख में चेहरे उदास है जुलूस कहीं पर और कहीं मजलिस बपा आ गया हमारे मुहर्रम अर्श से आंसू बहाने आ गई है फातिमा आ गया माहे मुहर्रम बिछ गया फर्शे अज़ा आ गया माहे मुहर्रम बिछ गया फर्शे अज़ा देख कर माहे अज़ा को माँ ने बच्चों से कहा आओ मैं तुमको बताऊं क्या है तहज़ीबे अज़ा बावजूद होकर करना सो सुनो हा मरसिया आ गया
गया अर्श से आंसू बहाने आ गई है फातिमा आ गया माहे मुहर्रम बिछ गया अर्शे अता आ गया माहे मुहर्रम बिछ गया अर्शे अता ये आज़ादारी चली है सैयदे सजाद से ज़ाकिरी की इब्तिदा है ज़ैनबे नाशाद से पैर में सजाद की है बेड़िया शाले अज़ा आ गया माहे मुहर्रम बिछ गया फर्शे अज़ा आ गया माहे मुहर्रम बिछ गया फर्शे अज़ा अर्श से आंसू बहाने आ गई है फातिमा आ गया माहे मुहर्रम बिछ गया फर्शे अज़ा आ गया माहे मुहर्रम बिछ गया फर्शे अज़ा आज हर दिल में बसा है तेरा ही गम या हुसैन गैर मुस्लिम भी मनाते हैं मुहर्रम या हुसैन एक तेरे गम ने ही मौला सबको यकजा कर दिया हुसैन या 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 हुसैन हुसैन या 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 हुसैन मोहम्मद के घराने से मोहम्मद के घराने से मोहम्मद के घराने से वफादारी न छोड़ेंगे आज़ादारी न छोड़ेंगे आज़ादारी न छोड़ेंगे आज़ादारी न छोड़ेंगे आज़ादारी न छोड़ेंगे मोहम्मद के घराने से मोहम्मद के घराने से वफादारी न छोड़ेंगे आज़ादारी न छोड़ेंगे आज़ादारी न छोड़ेंगे आज़ादारी न छोड़ेंगे आज़ादारी न छोड़ेंगे सियाह कपड़े सियाह चादर हुसैनी की निशानी है ज़बां पर नौहा खानों के लुटे घर की कहानी है ये किस कीमत पे छोड़ेंगे किसी कीमत पे इस घर से वफादारी न छोड़ेंगे वफादारी न छोड़ेंगे वफादारी न छोड़ेंगे
न छोड़ेंगे, आजादारी न छोड़ेंगे। मोहम्मद के घराने से, मोहम्मद के घराने से वफादारी न छोड़ेंगे, आजादारी न छोड़ेंगे, आजादारी न छोड़ेंगे। अलमदारे हुसैनी से आजादारों का वादा है, हवा जितनी मुखालिफ हो मगर अपना इरादा है। ये बाजू कट भी जाए तो, बाजू कट भी जाए तो अलमदारी न छोड़ेंगे, आजादारी न छोड़ेंगे, आजादारी न छोड़ेंगे, आजादारी न छोड़ेंगे, आजादारी न छोड़ेंगे। मोहम्मद के घराने से, मोहम्मद के घराने से वफादारी न छोड़ेंगे, आजादारी न छोड़ेंगे, आजादारी न छोड़ेंगे। शबे आशूर के जागे वो से हमको निस्बत है, ये शब बेदारियां क्या है, अकीदत है, मवादत है। मगर को तो जगाना है, मुकद्दर को जगाना है, ये बेदारी न छोड़ेंगे, आजादारी 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 न छोड़ेंगे। सलाम के रोज़े, सलाम के मज़ार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम के मज़ार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम के मज़ार। चला में वादा निभाने, चला में वादा निभाने, सलाम के मज़ार, सलाम के रोज़े, सलाम के मज़ार। हुस्न सलाम के रोज़े, सलाम के मज़ार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम के मज़ार, सलाम सब बढ़िया नाना के रोज़े, सलाम के मज़ार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम के मज़ार। मैं तेरा दीन बचाऊंगा है मेरे नाना, मैं अपना खून बहाऊंगा है मेरे नाना। हुसैन चाहता है मरने, हुसैन चाहता है मरने, सलाम माँ के मज़ार, सलाम हुसैन हुसैन हुसैन, सलाम माँ के मज़ार, सलाम नाना के रोज़े, 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 सलाम माँ के मज़ार। मेरी सकीना कहाँ और रसन के बंदे कहाँ, ना
वो खून से नाजुक कदम, वो खून से नाजुक वो रास्ते कुरान। सलाम माँ के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार। सलाम नाना के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार। दुआ करो कोई सर पे दान हो अम्मा, नमाज शौक़ शहादत फ़ज़ान हो अम्मा। आए मेरे चमन पे, आए मेरे चमन पे, मौला हसन या हुसैन, मौला इमाम या हसन या हुसैन, 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 मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। प्यासे गले खंजर चले, प्यासे गले खंजर चले, प्यासे गले खंजर चले, प्यासे गले खंजर चले, चादर छिनी तुरने लगे, चादर छिनी तुरने लगे, ओ अब्बास के परचम तले, अब्बास के परचम तले रोकर गए ये बीबियां। मौला हक इमाम गौसर, 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 हुसैन फैलाना। मुतवज्जे ज़ियारत। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हुज्जत अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह हुसैन, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन, अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन, अस्सलाम अलैका गरीबल गुरबा, अस्सलाम अलैका मुइना दुआफाए वल फुक़रा, अस्सलाम अलैका मुगीस शियत व ज़ुवार फ़ी यौमिल जज़ा, अस्सलाम अलैका मौलाया साहिबल अस्र व ज़मान, अलमान अलमान मिन फितनतिज़ ज़मान, अस्सलाम अलैका शरीकल कुरआन, अस्सलाम अलैका या मज़हरल ईमान, अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक वजअलना मिन आवानि व अंसारिह बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि
एक सूरह फातिहा तमाम मरहूमीन मोमिन मोमिनात के लिए, खुसूसन शहदाए मिल्लत जाफरिया की। बिस्मिल्लाह।